Class 11th. Today we will discuss Unit 6, Judiciary. Judiciary. Many times court are seen only as arbitrators in disputes between individuals or private parties. But judiciary performs some political functions also. Judiciary is an important organ of the government. The Supreme Court of India is, in fact, one of the very powerful courts in the world. Right from 1950, the judiciary has played an important role in interpreting and protecting the Constitution. In this chapter, you will study the role and importance of judiciary. In the chapter on fundamental rights, you have already read that the judiciary is very important for protecting our rights. After studying this chapter, you would be able to understand the meaning of independence of judiciary, the role of Indian judiciary in protecting our rights, the role of judiciary in interpreting the constitution, and the relationship between the judiciary and parliament of India. आमतौर पर न्यायालय को विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में देखा जाता है, लेकिन न्यायपालिका कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को भी अंजाम देती है। सरकार न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सभी शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। 1950 से न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम निम्न बातें जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। सेकंड पॉइंट, अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका क्या है। थर्ड पॉइंट, संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका क्या है। और भारत की संसद और न्यायपालिका के आपसी संबंध, इसमें भी हम इसमें पढ़ेंगे। Why do we need an independent judiciary? In any society, disputes are bound to arise between individuals, between groups, and between individuals or groups and government. All such disputes must be settled by an independent body in accordance with the principle of rule of law. This idea of rule of law implies that all individuals, rich and poor, men and women, forward or backward castes, are subjected to same law. The principal role of judiciary is to protect rule of law and ensure the supremacy of law. It safeguards rights of the individuals, settle disputes in accordance with the law, and ensures that democracy does not give way to individual or group dictatorship. In order to able to do all this, it is necessary that judiciary is independent of any political pressures. What is meant by an independent judiciary? How is this independence ensured? हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति और समूहों तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी, गरीब, स्त्री, पुरुष तथा अगड़े पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। और स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है,
यह स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है? तो नेक्स्ट हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी। Similarly, stated importance of judiciary means that the other organs of government like executive and legislature must not restrain the functioning of judiciary in such a way that it is unable to do justice to the other organs of the government should not interfere with the decision of judiciary. Judges must be able to perform their functions without fear or favor. Independence of judiciary does not imply arbitrary or absence of accountability. Judiciary is a part of the democratic political structure of the country. It is therefore accountable to the constitution, to the democratic traditions, and to the people of the country. How can the independence of judiciary be provided and protected? The Indian constitution has ensured the independence of judiciary through a number of measures. The legislature is not involved in the process of appointment of judges. Thus, it was believed that party politics would not play a role in the process of appointments. In order to be appointed as a judge, a person must have experience as a lawyer and or must be well versed in law. Political opinions of the person or his her political loyalty should not be criteria for न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग, एक तो विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुंचाएं ताकि वह ठीक तरीके से ठीक ढंग से कार्य कर सके। सरकार के अन्य अंग जो हैं न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करें। थर्ड पॉइंट, न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे कैसे सुरक्षित बनाया जा सकता है? भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रही। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस has never been free from political controversy. It is part of political process. It makes a difference who serves in Supreme Court and High Court, a difference in how the Constitution is interpreted, the political philosophy of judges, their views about active and assertive judiciary or controlled and committed judiciary have an impact on the fate of legislation enacted. Councils of ministers, governors, and chief ministers and chief justice of India all influence the process of judicial appointment. As far as appointment of chief justice of India, CJI is concerned, over years a convention had developed whereby the senior most judge of Supreme Court was appointed as chief justice of India. This convention was, however, broken twice. In 1973, A.N. Ray was appointed as CJI, superseding three senior judges. Again, Justice M.H. Wag was appointed, superseding Justice H.R. Khanna. न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद नहीं रही है। यह राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कौन है। इससे संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है। न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है, सक्रिय और मुखर न्यायपालिका के बारे में उनकी राय क्या है,
नियंत्रित और प्रतिबद्ध न्यायपालिका के विषय में उनके विचार क्या हैं, इन सब बातों पर प्रभाव लागू किए जाने वाले कानूनों पर पड़ता है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे सीनियर जज को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। 1973 में 3 वरिष्ठ जजों को छोड़कर न्यायमूर्ति एन रे को भारत का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। फिर 1975 में न्यायमूर्ति एच आर खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति एच एम बेग की नियुक्ति की गई है। द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट after consulting the CJI. This in effect meant that the final decisions in matters of appointment rested with the Council of Ministers. When then was status of consultation with the Chief Justice. The matter came up before the Supreme Court again between 1982 and 1998. Initially, the court felt the role of Chief Justice was purely consultative. Then it took the view that opinion of Chief Justice must be followed by President. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। फिर मुख्य न्यायाधीश से सलाह का क्या महत्व है? 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरीके से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इनमें से राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति के सिफारिश के संबंध में एक प्रकार के सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। इसी के कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज्यादा प्रभाव है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।